Again welcomes to you on online platform of Sri Sham Education Group Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I will teach you chapter 3rd. We are starting chapter 3rd, which name is coordinate geometry. Coordinate geometry. ओके तो आज हम इसके बेसिक फंडामेंटल के बारे में स्टडी करेंगे. ओके बेसिक फंडामेंटल के बारे में क्लास नाइन्थ. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर डायग्राम ड्रॉ करूंगा और इधर डेफिनेशन बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल I am telling you horizontal level, horizontal line, horizontal axis, horizontal axis. Horizontal axis is known as x-axis. This is plane. Okay. The parallel to plane axis, the parallel to plane axis, the parallel to plane axis is known as horizontal axis. Horizontal axis denoted by horizontal axis is known as x-axis. Okay, this is x-axis. This axis is parallel to plane. Okay, ये क्या है, जैसे ये अपना अर्थ हो गया और ये इसके क्या है, पैरेलल लाइन है. ओके तो द एक्सिस विच इज पैरेलल टू प्लेन, देन द एक्सिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ओके parallel to plane axis, shortly बता रहा हूँ. Parallel to plane axis is known as horizontal axis and horizontal axis is known as x-axis, represented by x-axis. Okay. Second is vertical axis. Vertical axis denoted by y-axis. Okay. So the axis which is perpendicular to plane, then the axis is known as vertical axis, and vertical axis denoted by y-axis. This is horizontal axis, it means x-axis. This is vertical axis, it means vertical axis, it means y-axis. ये perpendicular to plane होता है. perpendicular to plane axis is known as vertical axis, and vertical axis denoted by y-axis. Okay. Third is origin point. Origin point denoted by O. When x-axis and y-axis intersect to each other at a point, and that point is known as
origin point denoted by O. ओके, तो ये होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, शॉर्टली डेफिनेशन बता रहा हूँ, और स्पीक पूरा कर रहा हूँ। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड y axis is known as origin point. Now fourth is quadrant. अब देखो क्वाड्रेंट से पहले on x axis right side of O value of x is positive, so this is plus x axis, this is plus x axis. Okay, plus x axis right side of O. Okay, and minus x axis, this is minus x axis. Left side of O on horizontal axis value of x is decrease, it means negative, so this part of its part of x axis is minus x axis. ओके, -2 -3 ऐसे लेस होता जाएगा, और माइनस x axis को अपन x डैश से भी डिनोट करते हैं. ओके, on y axis above to x axis, on y axis above to x axis value of y will be increase, so its part of y axis is known as plus y axis. Okay, and below to and on y axis below to x axis value of y will be decrease, it means negative, decrease, it means negative, so its part of y axis is known as minus y axis or y dash we can say. Clear? Now on x axis right side of O, it means positive direction, right side of O value of x will be increase, then this part of x axis is known as plus x axis, and left side of O on x axis value of x will be decrease, so this part of x axis is known as minus x axis or x dash we can say. Above to x axis on y axis value of y will be decreased, so this part of y axis is known as plus y axis. Below to x axis on y axis value of y will be decreased, so this part is known as minus y axis or y dash. Clear? Now quadrant quadrant क्या होता है? When x axis and y axis intersect to each other, then they are divided the plane into 4 equal parts, then each equal parts is known as quadrant. When x axis and y axis intersect to each other, then they are divided the plane into 4 equal parts, then each equal parts is known as quadrant. Example for this is first quadrant, this is second quadrant, ये same equal part है first, this is second, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. Okay, on the other hand we can say 1/4 part of plane, 1/4 part of plane
divided by which is divided by x axis and y axis. Okay, then the 1/4 part is known as quadrant. Okay, 4 quadrant. Okay, now fifth, coordinate. क्या है coordinate? This is important. Coordinate. Okay, a set of number which locate a point. A set of number which locate a point on plane. Okay, तो देखो, 4 represent a point. 4 represent a point on plane. The value of this is point P. Okay, 4 represent a point. The value of x and y, the set of value of x and y is known as quadrant of that point. Okay, it means quadrant of point P क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल x की डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो राइट होगी. ओके, क्वाड्रेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी वैल्यू राइट होगी? x की. तो x की डायरेक्शन में क्या है? 3, और देन वैल्यू ऑफ y राइट होगी. तो y की डायरेक्शन में क्या है? 2. क्लियर? फॉर represent a point on plane, the set of value of x and y is known as coordinate of that point. Okay, coordinate of that point. Clear? Example, coordinate of point P. Coordinate of point P, x and y. Okay, अब नोट करना. 4 quadrant of point. First of all, value of x and then value of y will be right. Okay, for coordinate of a point, first of all value of x and then value of will be right. Okay, second है coordinate of origin point. Coordinate of origin point O 0, 0. Coordinate of origin point 0, 0
इट मीन्स वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ x 0 एंड वैल्यू ऑफ y ऑल्सो 0। अब देखो इस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ y x, वैल्यू ऑफ x क्या है 0, ये 0 है। राइट साइड में अपन एक्सटेंड होएंगे, पास होएंगे तो वैल्यू ऑफ x इंक्रीज होएगी, और लेफ्ट साइड में पास होएंगे ऑन x एक्सिस तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी डिक्रीज। बट इस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ x क्या होगी 0। ओके, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। और अबाउट टू x एक्सिस, ऑन x एक्सिस value of y will be decrease, and below to x axis on y axis value of y will be decrease, but on this point value of y will be 0. So we can say coordinate of origin point O 0, 0. Clear? Third, on x axis, on x axis, x axis y is equal 0, on x axis value of y is equal 0. Okay, इट मीन्स ऑन एक्स एक्सिस कोई भी पॉइंट लोकेट है, जैसे ये पॉइंट है तो इसका एक्स का वैल्यू क्या आएगा, जैसे ए पॉइंट हो गया, ये एक्स का पॉइंट क्या है, एक्स का पॉइंट है -2 एंड वैल्यू ऑफ वाई, वाई की डायरेक्शन में वैल्यू क्या है 0। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, जैसे ये पॉइंट बी है तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2, 0। ऑन एक्स एक्सिस एनी पॉइंट इज सिचुएटेड, देन वैल्यू ऑफ वाई दैट पॉइंट इज 0। ओके, सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल 0। इट मीन्स अगर इधर एक्सटेंड होएंगे तो वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज होगी, और लेफ्ट साइड में पास हुए तो वैल्यू ऑफ एक्स डिक्रीज होगी। बट नए हम लेफ्ट राइट साइड में पास हो रहे, नए हम लेफ्ट साइड में, तो हम है कहाँ पे ऑन वाई एक्सिस। तो ये जैसे पॉइंट के हो, किसको लोकेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एक्स की वैल्यू राइट होएगी, और ऑन वाई एक्सिस एक्स की डायरेक्शन में क्या है, इसकी वैल्यू 0, 0, 0 है इसके कोऑर्डिनेट, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है ये वाई एक्सिस। के की वैल्यू क्या होगी 0, -3। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे ये कोई पॉइंट है m, तो m की वैल्यू 0, 4। ओके, इट मीन्स x coordinate of any point which is on x axis, then value of y that point is 0. Clear? If any point situated on y axis, then y coordinate x coordinate of that point is 0. Clear? It means simple language we can say on x axis value of y any point is 0. Okay, on y axis value of any point, value of x of any point is 0. It means on x axis y is equal 0 and on y axis x is equal 0. Okay, now तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस x axis, parallel to plane axis is known as horizontal axis, and vertical axis denoted by y axis, perpendicular, it means यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल की फॉर्मेशन होगी। ओके, perpendicular to plane axis is known as vertical axis. ओके, तो ये मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ।
ओरिजिन पॉइंट भी हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब फोर्थ नंबर नोट करके मैं आपको बता रहा हूँ। एब्सिसा, एब्सिसा एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, इट मींस एब्सिसा क्या होगी? दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ए पॉइंट। ओके, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, distance of point P from y-axis, distance of point P from y-axis is known as abscissa. Okay, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम है, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। ओके, तो ये भी क्या है? ये डिस्टेंस सेम है, ये रेक्टेंगल ही बनता है। कभी भी रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम, यहाँ पे कौन सा? रेक्टेंगल कार्टेशियन सिस्टम। कभी भी कोई भी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट प्लॉट कर रहे हो, ओके, तो रेक्टेंगल शेप ही बनेगी। तो ये अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ये डिस्टेंस इस पॉइंट की कौन से एक्सिस से? वाई एक्सिस से। तो ये डिस्टेंस सेम है। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट, 3 क्या है? ये हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एब्सिसा। ओके, क्या हो गया? एब्सिसा। एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो एब्सिसा देखो आप, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस टू एनी पॉइंट on the plane, on the distance from y-axis to any point on the plane, it means distance किससे है? y-axis से। it means x coordinate of any point on plane is known as abscissa. Okay, distance from y-axis to any point on the plane, it means x coordinate of any point on the plane is known as abscissa. And reverse of abscissa क्या होता है? ordinate। तो ordinate होता है y coordinate। ओके, y coordinate। तो y coordinate देखो, this is x axis, this is distance from y axis, x axis, this is distance from x axis। ये डिस्टेंस क्या है? सेम है। ये डिस्टेंस कितनी है? 0 to 1, 1, 1 to 2, 2। तो 2 डिस्टेंस है, 2 यूनिट है। और 2 यूनिट किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। तो डिस्टेंस फ्रॉम y x axis, y coordinate of any point on the plane is known as
ऑर्डिनेट, क्या आएगा, ऑर्डिनेट। ओके, वैल्यू ऑफ वाई क्या आएगी, ऑर्डिनेट। ओके, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस to any point on the plane, it means डिस्टेंस x एक्सिस से है तो कोऑर्डिनेट ऑफ y होएगा, रिवर्स होता है। इट मींस y कोऑर्डिनेट ऑफ any point on the plane is known as ordinate of that point। ओके, या ऑर्डिनेट डायरेक्ट। ओके, इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट शो करते हैं तो वैल्यू ऑफ एक्स राइट की जाती है, देन वैल्यू ऑफ वाई राइट की जाती है। ओके, कोऑर्डिनेट क्या होता है, फॉर रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन प्लेन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इज नोन एज कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। Example for point coordinate of point P, x and y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू किसकी राइट की जाएगी, एब्सिसा की, यानी x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं। ओके, और वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट क्या होगी, वैल्यू ऑफ y होगी। ओके, बट ये अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो ये डिस्टेंस है और ये कितनी है, 3 है। 3 वैल्यू किसकी है, x की, और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रखा है क्वेश्चन में तो x की वैल्यू आपको राइट करनी है। और अगर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछे एनी पॉइंट, ओके, तो आपको क्या राइट करनी है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू कितनी है, 2। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछे तो आपको क्या राइट करनी है, वैल्यू ऑफ y राइट करनी है। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन मैंने आपको बताया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट है -3 एंड -8 फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो आंसर क्या होगा, आपको एक चीज और बता दूं मैं, डिस्टेंस डज नॉट नेगेटिव बट कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव। ओके, डिस्टेंस डज नॉट नेगेटिव बट कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव। ये कोऑर्डिनेट है तो ये तो नेगेटिव हो सकते हैं बट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। किसी के फादर साहब ऐसे नहीं बोलते मैं -2 किलोमीटर वॉक करके आया हूँ। ओके, तो ये डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होती। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, x ये कोऑर्डिनेट में तो पहले x की वैल्यू राइट की जाएगी और बाद में y की वैल्यू, बट डिस्टेंस पूछी है x एक्सिस से तो आप y की वैल्यू राइट करोगे। ठीक है, ये आपको मैंने डायग्राम से समझाया कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछे तो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस किसकी वैल्यू है, 2। ये डिस्टेंस 2 है, 2 किसकी वैल्यू है, वैल्यू y है। और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछे तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। ये रेक्टेंगल बनता है, ये अपोजिट साइड होगी, ये भी अपोजिट साइड होगी।
तो ये डिस्टेंस 3 है और 3 वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछे तो वैल्यू ऑफ y राइट करनी है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछे तो वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछे तो वैल्यू ऑफ x राइट करनी है, और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछे तो वैल्यू ऑफ y राइट करनी है। इस क्वेश्चन में आप सीन कर सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल क्या होगा, x एक्सिस से डिस्टेंस है +8 यूनिट सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो y की वैल्यू आपको राइट करनी है, x एक्सिस से डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस -3 है, कोऑर्डिनेट है ये तो, बट डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं, तो 3 यूनिट। बिकॉज इसका रीजन क्या है, माइनस क्यों नहीं टैग किया, डिस्टेंस डज नॉट नेगेटिव, डिस्टेंस डज नॉट नेगेटिव, डिस्टेंस डज नॉट नेगेटिव, क्लियर, डिस्टेंस डज नॉट नेगेटिव। तो आपको x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वैल्यू ऑफ y राइट करनी है, मैंने वो आपको डायरेक्ट डीपली समझा दिया, और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछे तो वैल्यू ऑफ x राइट करनी है, बट माइनस में आ जाए तो अपन प्लस ही टैग करेंगे, बिकॉज ये कोऑर्डिनेट है, ये तो माइनस में अवेलेबल हो सकते हैं, बट डिस्टेंस डज नॉट नेगेटिव। आपको एग्जांपल भी दे दिया भी, किसी के फादर साहब ये नहीं कहते मैं मॉर्निंग में -2 किमी वॉक करके आता हूँ। ओके, तो डिस्टेंस डज नॉट नेगेटिव, क्लियर। नाउ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें वैल्यू ऑफ x क्या होगी, पॉजिटिव, और वैल्यू ऑफ y विल बी पॉजिटिव। ओके, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें वैल्यू ऑफ x नेगेटिव होगी, वैल्यू ऑफ y पॉजिटिव होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x राइट की जाती है कोऑर्डिनेट में, और देन वैल्यू ऑफ y राइट की जाती है। ओके, इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू ऑफ x भी नेगेटिव होगी और वैल्यू ऑफ y भी नेगेटिव होगी, क्लियर। फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव होगी और वैल्यू ऑफ x नेगेटिव होगी, क्लियर। तो कोऑर्डिनेट में ये ज़्यादा आपको नोट करके मैंने बताया। फॉर रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन प्लेन द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y इज नोन एज कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। एग्जांपल फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p x y, फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू राइट करनी है, देन वैल्यू ऑफ y राइट करनी है। भी x की डायरेक्शन में वैल्यू कितनी है 3, और देन y की डायरेक्शन में वैल्यू कितनी है 2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 and 2। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x and then value of y will be right for show the coordinate of point on the plane. Okay, coordinate of origin point O 0,0 यानी origin point पे x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है। on x axis coordinate of y coordinate of any point is 0 and its reverse on y axis coordinate of x of any point is 0। x axis पे y की वैल्यू 0 होगी, कोई पॉइंट अवेलेबल है तो, और y axis पे x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी अगर कोई पॉइंट अवेलेबल है तो। एब्सिसा किसको बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट को। डिस्टेंस फ्रॉम y axis to any point on the plane, it means x coordinate of any point on the plane is known as abscissa, and its reverse ordinate बोलते हैं y coordinate को। Distance from x axis to any point on the plane, it means y coordinate of any point on the plane is known as
ordinate. Okay, distance of point P, coordinate of point P -3 and -8 from x axis and y axis. तो x axis से डिस्टेंस पूछा है तो y की वैल्यू आपको राइट करनी है बट पॉजिटिव में, और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछी है तो x की वैल्यू राइट करनी है वो भी पॉजिटिव, बिकॉज डिस्टेंस डज नॉट नेगेटिव. तो दिस इज बेसिक फंडामेंटल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1, उसके 2 ही क्वेश्चंस हैं, वो भी थ्योरेटिकल. ओके, तो आप ये बेसिक फंडामेंटल आपको अच्छे से आएंगे तो ही आप आगे इस पूरे चैप्टर को समझ पाओगे. थैंक्स. ओके.